بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ ابو حامد غزالی 1058 تا دسمبر 1111۔ غزالی پورا نام حمد محمد بن محمد توسا الفضلہ تھا اور فارسی بولنے والے ممالک میں امام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد غزالی یا قرون وسطیٰ کے یورپ میں جسے لاطینی زبان میں الغزالس یا الغزال کہا جاتا ہے، ایک فارسی سنی مسلم پولیمت تھا۔ وہ اسلامی تاریخ کے سب سے ممتاز اور بااثر فقی مشاہیر، قانونی نظریہ دان، مفتی، فلسفی، ماہر الہیات، منطق دان اور صوفی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں 11ویں صدی کا مجدد سمجھا جاتا ہے، ایمان کی تجدید کرنے والا، جو حدیث نبوی کے مطابق ہر 100 سال میں ایک بار اسلامی برادری کی بحالی کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ الغزالی کی تخلیقات کو ان کے ہم عصروں نے استعداد سراہا۔ انہیں اسلام کا ثبوت، حجت اسلام کے اعزازی لقب سے نوازا گیا۔ الغزالی شافعی مکتب قانون میں ایک ممتاز مجتہد تھے۔ غزالی کا زیادہ تر کام بغداد کی یونیورسٹی کے سربراہ کے طور پر تقرری کے بعد ان کے روحانی برہانوں کے گرد گھومتا ہے، جو اس وقت مسلم دنیا سے غائب ہو گئے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس نے خدا کے مقابلے میں حیثیت اور انا کا راستہ چنا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلامی روحانی روایات ختم ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو پہلی نسل کے پڑھائے جانے والے روحانی علوم کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے وہ احیاء علوم الدین، دینی علوم کا احیاء کے عنوان سے اپنی عظیم الشان تحریر لکھنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی دیگر تصانیف میں تحفۃ الفلاسفہ، فلسفیوں کے بے ربطی، فلسفہ کی تاریخ میں ایک اہم مقام ہے۔ امام غزالی کی ولادت 1058 میں ہوئی۔ وہ ایک مسلم اسکالر، ماہر قانون، عقلیت پسند اور فارسی نسل کے روحانیت پسند تھے۔ وہ تبران، ضلع طوس، خراسان، جو اب ایران کا حصہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ سامعین، ایک بعد از مرگ روایت جس کی صداقت پر حالیہ اسکالرشپ میں سوال اٹھایا گیا ہے، ان کے والد غربت میں فوت ہوئے اور نوجوان غزالی اور اپنے بھائی احمد کو ایک صوفی کے سپرد کر دیا۔ الغزالی کے ہم عصر اور پہلے سوانح نگار عبدالغفیر فارسی نے صرف یہ لکھا ہے کہ الغزالی نے اسلامی فقہ تعلیم احمد رضا خانی، ایک مقامی استاد اور نقشبندی صوفی سے حاصل کی تھی، تو سے 27 گرگن میں تعلیم حاصل کی۔ 1085 میں الجوینی کی موت کے بعد الغزالی نیشا پور سے روانہ ہوئے اور سلجوق سلطنت کے طاقتور وزیر نظام الملک کے دربار میں شامل ہوئے، جس کا مرکز اصفہان میں تھا۔ انہیں مذہب کی شان اور مذہبی رہنماؤں میں ممتاز جیسے القابات سے نوازا گیا۔ احمد سنجر کے وزیر اعلیٰ فخر الملک نے الغزالی پر زور دیا کہ وہ نیشا پور نظامیہ کی طرف واپس جائیں۔ الغزالی نے 1106 میں سر تسلیم خم کر دیا، اس خوف سے کہ ان کی تعلیمات مزاحمت اور تنازع کا شکار ہو جائیں گی۔ بعد میں وہ طوس واپس آئے۔ ان کا انتقال 19 دسمبر 1111 کو ہوا۔ عبدالغفار فارسی کے مطابق ان کی کئی بیٹیاں تھیں لیکن بیٹا کوئی نہیں تھا۔ زی وائس امام غزالی کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس کے محلات کے مکینوں میں ان کا شمار ہو، اور زی بھی امام غزالی کی مذہبی خدمات کی پیروی کرتے اپنے خاندان قبیلے کے ہمراہ جنت الفردوس کے حسین محلات کی مکین ہو، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ دوستی، محسن اور احسن بہت اچھے دوست تھے۔ وہ دونوں 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ محسن بہت لائق تھا اور اسے ہمیشہ پڑھائی کی فکر رہتی تھی۔ احتشام اور رافع بھی انہی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں بھی محسن اور احسن کے دوست تھے، مگر آپس میں وہ دونوں گہرے دوست تھے۔ رافع تھوڑا موٹے دماغ کا تھا اور کھانے پینے کا شوقین تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر اپنے دوستوں کو کہتا کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک بڑی نہر بھی تھی۔ کبھی کبھی چاروں دوست نہر پر نہانے چلے جاتے۔ اس ویکینڈ پر بھی حسب معمول احتشام اور رافع محسن کے گھر آئے، جہاں احسن پہلے سے موجود تھا۔ رافع نے گھر آتے ہی اپنے دوستوں کو سلام کیا اور عطسہ اٹھا لیا۔ محسن ٹیبل پر کچھ کیمیکل رکھے تجربات میں مصروف تھا۔ رافع نے محسن سے کہا، باہر کتنا اچھا موسم ہے
कर रहा हूँ। मंडे को सर काम चेक करेंगे। एहसन ने कहा, ये मुख्तलिफ केमिकल हैं, तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। राफे ने कहा, हरगज़ नहीं, मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होती। एहतशाम ने कहा, हर दफ़ा तुम्हारी वजह से ही हमें परेशानी उठाना पड़ती है। राफे ने कहा, मैं नहीं मानता। इतने में मोहसिन ने कहा, ये स्मेल कैसी आ रही है? फिर टेबल पर पड़े केमिकल देखकर कहा, बाहर भागो यारो, ब्लास्ट होने वाला है। वो सारे कमरे से दौड़कर बाहर आए तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। राफे ने जो अदसा पकड़ा हुआ था उसकी वजह से धमाका हुआ था। शाम को मोहसिन और एहसन दोनों नहर पर चले गए क्योंकि मेंढक का ऑपरेशन करना था। स्कूल से सर ने तमाम लड़कों को सख्ती से हिदायत की थी कि नहर करीब है, सब लड़के छुट्टी वाले दिन मेंढक का ऑपरेशन करें और मंडे को मैं सब लड़कों का ये तजर्बा चेक करूँगा। नहर पर कई और लड़के पहले से आए हुए थे और कई लड़कों का रात जंगल में गुजारने का प्रोग्राम था। मोहसिन और एहसन भी टेंट लेकर आए हुए थे। दोनों ने मिलकर अपना टेंट लगा लिया। रात का खाना वो घर से ही लेकर आए थे। एहसन ने नहर किनारे से मेंढक को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। मोहसिन मेंढक को लेकर उसका ऑपरेशन करने लगा। एहसन ने कहा, मुझसे ये सब नहीं देखा जा सकता। वो दूर बैठकर फ्रूट खाने लगा। उसे फ्रूट खाता देखकर बंदर दरख्त से नीचे उतर आया, गोया वो भी फ्रूट खाने आया हो, मगर एहसन ने उसे फ्रूट नहीं दिया और भगाना शुरू हो गया। जाओ जाओ, ये हमारे खाने के लिए है, तुम्हें नहीं मिलने वाला। इतने में उसने देखा राफे और एहतशाम भी उन्हें ढूंढते आ गए और अपना टेंट करीब ही लगा लिया। राफे ने कहा, यार तुम अकेले ही आ गए और टेंट भी लगा लिया और हमें कानों कान खबर ना होने दी। राफे ने कहा, एहतशाम को अकेले फ्रूट खाते देखा। राफे ने एहतशाम को अकेले फ्रूट खाते देखा जबकि बंदर उसे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। उसने कहा, इतनी भी क्या कंजूसी, अकेले अकेले फ्रूट खा रहे हो, घर आए मेहमानों को भी तो दो। ये कहकर उसने सारा फ्रूट बंदरों की तरफ उछाल दिया जिसे उन्होंने फ़ौरन कैच करके खाना शुरू कर दिया। ये देखकर मोहसिन ने कहा, तुमने जो करना है करो, मुझसे दूर रहो। एहतशाम ने कहा, वाह भाई, तुम लोगों ने तो कैंप फायर भी जला रखी है। मोहसिन ने कहा, खबरदार, ओए ये हमारी कैंप फायर है, इसे ना हिलाना, अपनी कैंप फायर खुद जलाओ। राफे ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी कैंप फायर जला लेते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ जमा की। एहतशाम ने कहा, आग जलाने के लिए तो हमारे पास ना माचिस है ना लाइटर, आग कैसे जलाएं? राफे ने झट अपने दोस्तों की आग से एक जलती लकड़ी उठाई और एहतशाम को आग जलाने के लिए दे दी। मोहसिन ने कहा, हमारी लकड़ी वापस करो। वो इस वक्त टेबल पर मुख्तलिफ केमिकल रखे तजर्बा करने में मसरूफ़ था। राफे ने कहा, इतनी भी क्या कंजूसी, ये कहकर उसने लकड़ी मोहसिन की तरफ फेंक दी। मोहसिन ने जलती लकड़ी अपनी तरफ आते देखकर कहा, ये लकड़ी अगर मेरे टेबल पर गिरी तो ब्लास्ट हो जाएगा। दोनों टेबल उठाकर भागे। दरख्त पर बंदर बैठा था। उसने लकड़ी अपनी तरफ आते देखकर लकड़ी पकड़ ली और उसे मोहसिन की टेबल पर दे मारा। ज़ोरदार धमाका हुआ और मोहसिन की हालत गैर हो गई। वो गुस्से से चिल्लाया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और एक तरफ चल दिया। उसे पता ही ना चला और वो एक गार के अंदर चला गया। गार में एक काला रीछ सो रहा था। वो जाग गया और मोहसिन के पीछे लग गया। कोई तो बचाओ, ओए, ये कहता हुआ मोहसिन भाग खड़ा हुआ। एहतशाम कहने लगा, मोहसिन की किस्मत ही ख़राब है। एहसन कहने लगा, जिसके तुम जैसे दोस्त हो उनकी किस्मत ही ख़राब होगी। मोहसिन ने हॉट एयर बैलून की रस्सी एहसन की तरफ फेंकी और कहा, इसे किसी दरख्त से बांध दो। अब मैं ऊपर आराम से एक्सपेरिमेंट करूंगा, यहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। राफे ने कहा, प्लीज़ बड़े भैया ऊपर आने दो ना, सिर्फ एक बार, मैं भी ऊपर आकर आपकी हेल्प करूं। तुम इतनी हेल्प करो, नीचे रहो और मुझसे दूर रहो। राफे ये सुनकर खामोशी से उसी दरख्त के पास लेट गया जहाँ से उसे हॉट एयर बैलून नज़र आ रहा था, जबकि एहसन और एहतशाम कैंप फायर के पास बैठे बैठे सो रहे थे। राफे किसी भी तरह हॉट एयर बैलून तक पहुँचना चाहता था। काफ़ी देर तक वो लेटे लेटे हॉट एयर बैलून को देखता, करवटें बदलता रहा और फिर खामोशी से खड़ा हुआ और खामोशी से दरख्त के रास्ते बैलून की छत पर जा पहुंचा और बेख्तियार बोला, आहा, कितना खूबसूरत नज़ारा है, काश यहाँ पर कैंप फायर भी जल सकती। दरख्त पर मौजूद बंदरों ने जब ये सुना तो वो लकड़ियाँ ले आए। एक बंदर चुपके से जलती हुई लकड़ी भी ले आया
आग जल पड़ी। राफे सब बंदरों के साथ मिलकर नाचने लगा। नाचते नाचते वो रस्सी के सहारे मोहसिन के पास जा पहुंचा और कहने लगा, बड़े भैया क्या खूबसूरत नज़ारा है, बंदर कैसे नाच रहे हैं। मोहसिन बोला, तुम यहाँ भी पहुँच गए। ओए, और बंदर ऊपर क्या कर रहे हैं। राफे बोला, वो ऊपर कैंप फायर का मजा ले रहे हैं, उन्हें ये मौका कब मिलता है। मोहसिन ने कहा और बैलून की छत पर कैंप फायर कर दिया। ओह नो, ये कहते हुए मोहसिन राफे के साथ बैलून की छत पर जा पहुंचा। एक जोरदार धमाका हुआ और बैलून की छत आग की वजह से उड़ गई। बैलून के साथ ही वो दोनों भी उड़ गए। काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद वो सीधे नहर में जा गिरे, जिसकी वजह से उन दोनों को कोई चोट नहीं आई। कपड़े तब्दील करने के बाद मोहसिन फिर से अपने एक्सपेरिमेंट में लग गया, लेकिन अब की बार वो नहर के किनारे था। नहर में गिरने की वजह से जोरदार धमाका हुआ था। नहर की तह में मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। मगरमच्छ ने नहर से सर बाहर निकाला तो मोहसिन को करीब पाया। वो आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन की तरफ जाने लगा। मोहसिन ने भी मगरमच्छ को देख लिया था और एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझको बचाओ, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। राफे बोला, यार आप उसकी बगल में खड़े हो जाओ, मैं तस्वीर बनाता हूँ। मोहसिन बोला, मैं उसकी बगल में नहीं, उसके पेट में नजर आऊँगा, जल्दी से जल्दी लकड़ी फेंको। मगरमच्छ अब करीब आ गया था। मोहसिन मगरमच्छ को देखकर बोला, अलविदा मेरे दोस्तों, भूल चूक माफ़ करना। ओए, एहतशाम बोला, राफे जल्दी करो, जल्दी लकड़ी फेंको। राफे ने कहा, पहले बड़े भैया सॉरी करेंगे तभी मैं जल्दी लकड़ी फेंकूंगा। मोहसिन झट बोला, सॉरी यार, जल्दी करो, जल्दी लकड़ी फेंको वरना ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। राफे जल्दी से जल्दी लकड़ी उठाकर मगरमच्छ की तरफ दौड़ा और उसे डराना शुरू कर दिया। मगरमच्छ आग देखकर डर गया और वापस नहर की तरफ चला गया। मोहसिन ने जब देखा मगरमच्छ वापस नहर में चला गया है तो वो चट्टान से नीचे उतर आया और बेख्तियार राफे के गले लग गया। राफे ने जल्दी लकड़ी अभी तक हाथ में पकड़ी हुई थी। राफे भी खुशी से मोहसिन के गले लग गया, मगर जलती लकड़ी से मोहसिन के कपड़ों में आग लग गई। ये देखकर दोनों ने नहर के पानी में छलांग लगाकर आग बुझाई। एहसन ने राफे से कहा, बर्दाश्त करने की भी हद होती है, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोहसिन ने कहा, खबरदार, जो तुमने राफे को कुछ कहा, यही तो एक दोस्त है जो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आया, तुम नहीं आए। मोहसिन बोला, छोड़ ये एक्सपेरिमेंट वगैरह, और मिलकर पिकनिक मनाते हैं। ये कहकर वो कैंप फायर के पास नाचने लगे। एहतशाम दोनों को डांस करते देखकर बोला, ये मोहसिन को क्या हो गया है। ये कहकर एहतशाम और एहसन भी उन दोनों के साथ मिलकर डांस करने लगे। सामईन, दोस्ती की कई दास्तानें आपने सुनी होंगी। दोस्त दोस्तों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। आपने दोस्ती की बहुत सी दास्तानें सुनी होंगी, मगर उम्मीद है ये दास्तान आपने पहले नहीं सुनी होगी। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मेहरबानी करके ज़ी वाइस को सपोर्ट करें, वाच करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।